Hello viewers, our today's topic is from plant anatomy paper, secretory tissues. In this lecture we will discuss about the different types of secretory tissue, lactiferous, glandular, and the different products of this secretory tissue, their usefulness for the human beings and their functions in the plant. Secretory tissue. First of all, what are the secretory tissue? Like other tissues, it is also a group of cells, but as the name suggests, these are the secretory tissue because this group of cells produce variety of secretions. That's why these are termed as secretory tissues. They may be present at a certain location in the area or may be distributed all around the plant body. The secreted substance may be remain deposited within the plant or the cell itself, or it may be released or goes to the other part of the plant or excreted from the cells or released from the cells. Substance may be excreted to the surface also और इंटरसेलुलर कैविटीज़ कि डिपेंड करेगा कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इंटरसेलुलर कैविटीज़ हैं प्लांट्स के अंदर उसमें स्टोर होंगे या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्लांट का जो सरफेस है एपिडर्मिस है उससे बाहर सिक्रीट होंगे. Some of many substance contains in these secretions are not utilized by the plants like resin, rubbers और जो ये इस टाइप के जो secretions है that are most useful for the human beings, while some other secretions like enzymes or hormones that are secreted by the plant itself and also useful for the plants itself. Secretory tissue mainly two types: lactiferous tissue, glandular tissues. Lactiferous tissue. These tissues consist of the cell, thin-walled, highly elongated cell and having the branched ducts. These ducts containing the secretion in the form of milky or yellowish colored juice that is known as latex. जो mixture है जो latex है that may be milky white or sometime it is also different colors. These contain the protein, carbohydrates, enzymes, tannin, rubber, hormones and alkaloids, and this is irregularly distributed in the form of parenchymatous cells का एक ग्रुप होता है जो इसको सिक्रेट करेगा और वो प्लांट्स में कहीं भी अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा irregularly. और जो लेटेक्स है that is of great economically importance for the human being. Lactiferous tissue, based upon their structure, there are two types of lactiferous ducts. First are latex cell that are also known as non-articulate latex duct. Second type is latex vessels. Here these are the latex cell, these are the latex vessels or articulate latex ducts. First we will discuss the latex cell or non-articulated latex duct. These are arise simple in origin, means इनका जो origin होगा that is from the single cell. इसमें जो कंटिन्यूस ग्रोथ होगी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे दैट इज ऑफनली ब्रांच्ड बट टाइपिकली देयर इज नो फ्यूजन. ब्रांचिंग होगी बट उस ब्रांचिंग में फ्यूजन नहीं होगा. तो देर आर ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्रांचिंग जो लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं जो लेटेक्स सेल्स हैं दैट आर ऑफ टू काइंड, ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड. दीज आर ऑल्सो नोन एज द नॉन आर्टिकुलेट लेटेक्स डक्ट्स and these are act as independent unit, extend their branch structure for the long distance in the plant body, but जो branch structures हैं वो एक दूसरे के साथ combine नहीं करेंगी. They developed as the minute structure, elongate fastly and expand in all direction. हर एक साइड में एक वो बनाएंगी बट जो है ये फ्यूज नहीं करेंगे, एक नेटवर्क रेटिकुलेट फॉर्मेशन नहीं करेंगी क्योंकि जो ब्रांचिंग होंगी वो सारी इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगी अपने आप में, एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट ग्रो करेंगी, एक दूसरे के साथ फ्यूजन नहीं करेंगी. तो जैसे लेटेक्स वेसल में एक नेटवर्क बन जाता है, रेटिकुलेट फॉर्मेशन बन जाती है, वो नेटवर्क यहाँ पे नहीं फॉर्म होगा लेटेक्स सेल में या नॉन आर्टिकुलेटेड में. जैसे यहाँ पे शो किए हुए हैं नॉन आर्टिकुलेटेड अनब्रांच्ड, ये जो है लेटेक्स डक्ट्स हैं नॉन आर्टिकुलेटेड और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है. लाइकवाइज दिस इन ह्यूमिलस लूपस एंड कैटेरेंथस रोजियस. नॉन आर्टिकुलेटेड बट ब्रांच्ड नीरियम ओलियंड्रम, ये देखो यहाँ पे इसमें ब्रांचिंग है बट जो ये ब्रांचिंग है ये एक दूसरे से कहीं भी फ्यूज्ड नहीं है. लाइकवाइज इन यूफोर्बिया मार्टिनी
हेयर ब्रांचिंग ऑल्सो देयर, बट जो ब्रांच्ड हैं वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रही हैं आगे प्लांट्स में. सो दीज आर नॉन आर्टिकुलेटेड बट ब्रांच्ड. सेकेंड टाइप ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट्स आर लेटेक्स वेसल्स और आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स. जो आर्टिकुलेटेड लेटेक्स डक्ट्स हैं दैट containing many types of cells together and functions like a tissue or a different types of cells. These are compound in origin means जो origin होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है different cells हैं, तो उसका जो origin है वो भी number of cells से arise होंगी. That consist of a longitudinal files of cell, और जो इनकी end walls होंगी that break down completely or partially. This type of latex ducts have the pore in their lateral walls. जैसे xylem vessels में lateral wall के अंदर pores present होते हैं, उसी टाइप से जो latex vessels हैं इनके अंदर भी pores present होते हैं. That's why they are termed as vessels, because जैसे xylem vessels में present होते हैं lateral wall में pore, ऐसे ही इन articulated latex ducts में भी होते हैं, और इसी वजह से इनको हम latex cell की बजाय latex vessels बोलते हैं. These type of lactiferous have formerly called lactiferous vessels. और जो कॉमनली फैमिलीज हैं जिसके अंदर इस टाइप के आपको लेटिस वेसल्स मिलेंगी, दैट इज पेपेवेरेसी, एस्टरेसी, यूफोर्बिएसी, मोरेसी एंड मैनी अदर्स ऑल्सो. These articulated lactiferous ducts are further subdivided into two groups depending upon their branching: articulated antastomosing duct and articulated non-antastomosing ducts. एंटास्मोसिंग मीन्स क्या होगा, जो लेक्टिफेरस कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग सेल और चेन और कंपाउंड, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी लेटरली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी. जो ट्यूब्स होंगी सारे के सारे, जो सेल्स होंगी, वेसल्स होंगी, वो लिटरली एक दूसरे से ऐसे जो कनेक्शन है उनमें ऐसे लिटरली एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी. तो दीज आर कॉल्ड एज आर्टिकुलेटेड एंटास्टोमोसिंग एंड फॉर्म अ नेट लाइक और रेटिकुलम स्ट्रक्चर. नॉन एंटास्मोसिंग इसके अपोजिट होंगी, उसके अंदर इस टाइप का कोई भी लेटरल फ्यूजन कनेक्शन नहीं होगा, जैसा कि आपको एंटास्मोसिंग में दिखेगा. ये यहाँ पे दोनों के एग्जांपल शो किए हुए हैं. दीज आर आर्टिकुलेटेड नॉन एंटास्मोसिंग डक्ट्स. दीज आर आर्टिकुलेटेड नॉन एंटास्मोसिंग डक्ट्स लाइकवाइज दिस. बट हेयर यहाँ पे ये देखो 3 ब्रांचिंग्स हैं इनकी, और ये सारे के सारे ये लेटरली जो है ये एक दूसरे से ऐसे फ्यूजन हो रहा है इसमें. तो ये क्या है, आर्टिकुलेटेड एंटास्मोसिंग, और जिसमें ये फ्यूजन नहीं होगा दैट आर नॉन एंटास्मोसिंग. Then what are the usefulness and functions of these lactiferous tissue in the plants? First, they help in the conduction of the food substances, because इट में भी कि वो जो है जाइलम वेसल्स से अराइज हुए, और जाइलम वेसल्स क्या है कंडक्शन में हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो स्टोर द फूड मटेरियल, बिकॉज क्या है वो सिक्रीशन कर रहे हैं. वो सिक्रीशन कहाँ से कर रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में उनको रिजर्व कर रहे हैं. रेजिन डक्ट्स हैं, स्टार्च है, और रिजर्व न्यूट्रिशन. दे रेगुलेट एंड मेंटेन वाटर बैलेंस इन द प्लांट. दे वर्क एज एजेंसी फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टू परफॉर्म द एक्सक्रीटरी रोल्स. भी प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेस अमाउंट में उसको बाहर निकालना है, तो दीज आर ऑल्सो एक्ट एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द प्लांट्स. तो इनके अंदर जो कुछ एक्सक्रीशन में निकालते हैं जैसे लेटेक्स है, रेजिन्स हैं, दे हैव द मच इकोनॉमिक वैल्यू लाइक रबर फ्रॉम द हेविया और फाइकस प्लांट. ओपियम यूज एज अ ड्रग फ्रॉम द पेपेवर सोमेनिफेरम, and papain enzyme that is mostly used, that is from the carica. Thanks.